پرچموں سے قمقموں سے گھر مغل سج گئے، عاشقوں کی عید آئی، عاشقوں کی عید آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پہ قیامت کیجیے، جان کافر پہ قیامت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیو میں نے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عرض کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ جہاں ہم اپنی گھر کی ذاتی، گھر کی ہو یا خاندانی ہو، ذاتی خوشیوں میں ہم قرآن و حدیث کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہاں جب بھی میلاد کا موقع آتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا وقت آتا ہے، وہاں پہ ہمیں قرآن و حدیث یاد آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو لہذا دیکھنا ہے تو ہر وقت قرآن حدیث کی دلیل دیکھو، لیکن نہیں، اپنی ذاتی خوشیوں میں قرآن حدیث کی دلیل دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور جب میلاد کی خوشی منانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کے جلسے ناجائز اور سیرت النبی کے جائز، تو میں نے فرق بتا دیا تھا کہ کس پیمانے سے، کس اصول سے میلاد کے جلسے ناجائز اور سیرت کے جلسے جائز قرار پا رہے ہیں۔ کیا صرف میلاد النبی کا نام آ گیا جلسے کے آگے، اس سے ناجائز ہو جائیں گے؟ افسوس ہے، اگر ایسا ہی ہے تو یہ دل میں بغض رسول، حسد رسول کا مطلب ہے کہ صرف جلسے کے نام کے آگے میلاد لگ جائے تو وہ جلسہ ناجائز ہو جائے، لیکن وہی جلسہ سیرت کے نام سے ہو جائے تو وہ جائز ہو جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ میلاد النبی کا جلسہ کرے کیا؟ بچکانا اور جہالت بھرا سوال ہے۔ تو جیسے کو تیسا، تو کیا صحابہ میلاد کا جلسہ کرے گا، یہ سوال کرتے ہیں، تو میں انہیں پوچھتا ہوں، کیا صحابہ سیرت کا جلسہ کرے؟ کیا صحابہ ختم بخاری کا جلسہ کرے؟ کیونکہ بخاری تو تھی ہی نہیں، تو کیا صحابہ سیرت کا جلسہ کرے؟ کیا سیرت صحابہ کا جلسہ کرے؟ نہیں کرے۔ تو جب صحابہ سیرت کا جلسہ نہیں کرے تو پھر میلاد کے جلسے کی بات کیوں؟ لہذا جب میلاد کا جلسہ جائز تو سیرت کا جلسہ جائز، اور سیرت کا جلسہ جائز تو میلاد کا بھی جلسہ جائز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان جلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ جلسوں کے ذریعے علماء کرام جو بیانات کرتے ہیں، محبت رسول، اطاعت رسول کی جانب لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اور ان جلسوں میں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور نعت رسول پڑھنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ لیکن آج کل کے بد عقیدہ وہابیوں کے نزدیک نعت رسول پڑھنا بھی شرک ٹھہرتا ہے، جبکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پڑھتے سرکار کی شان میں حضرت حسان، تو آپ انہیں دعائیں دیتے اور فرماتے، اے اللہ تو حسان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ اس طرح آپ دعائیں دے۔ بے شمار صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، تو یہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، جب امت زوال کی جانب گامزن ہو جائے، امت کا زوال شروع ہو جائے، پستی کی طرف امت چلی جا رہی ہو، ایسے وقت میں ہم امت کے عروج کے لیے کیا کریں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے وقت میں
उम्मत के दिल में मोहब्बत रसूल को पैदा किया जाए। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मोहब्बत रसूल को पैदा कैसे कैसे किया जाए, मोहब्बत रसूल को पैदा करने का जरिया क्या है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उम्मत उस वक्त ये काम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की सीरत का मुतालिया करे और सुना करे। इससे मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। जब दिल में मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा तो यही मोहब्बत रसूल का जज्बा उम्मत को उरूज की जानिब ले जाएगा। इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं मोहब्बत रसूल जो ईमान की जान है, अपनी औलाद के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करो। तो उलमा फरमाते हैं मोहब्बत रसूल पैदा करने के दो जरिए हैं। एक क्या है, दरूद पाक सरकार पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, और दूसरी चीज ज्यादा से ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नात पढ़ी जाए, सुनी जाए या लिखी जाए। इन दोनों चीजों के करने से दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी जो ईमान की जान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए इतनी तमहीदी गुफ्तगू के बाद आज की वीडियो में मैं लोग सवाल करते हैं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत कुरान में है क्या, कुरान की किसी आयत में मिलाद मनाने का हुक्म है क्या। हालांकि है बेशुमार आयतें हैं, लेकिन आज की निशित में चंद आयतें मैं सबूत के तौर पे पेश करूंगा। अहले सुन्नत का कोई भी अकीदा ऐसा नहीं है जो कुरान और सुन्नत से हटकर है। कमी है तो हमारी मालूमात की कमी है। हमारे सुन्नी भाइयों का ईमान इस वीडियो से ताज़ा हो जाएगा। और मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो मीलादुन नबी को बुरा भला कहते हैं, आप ठंडे दिल से सोचें कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में सबूत है। आज मैं आयतें पेश कर रहा हूं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने एक आयत करीमा पेश कर दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है रब की दी हुई नेमतों का चर्चा करो। तो अल्लाह ने हजारा नेमतों से इंसान को सरफराज फरमाया है। तो जब हर नेमत का शुक्र अदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, हर नेमत का चर्चा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत है। तो इस नेमत का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा इस नेमत का शुक्र अदा करना उम्मत का फर्ज होना चाहिए। उम्मत का तरीका ये ने सबसे पहले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना ज्यादा इस महीने में जिक्र किया जाए, चर्चा किया जाए, कम है। और दूसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम, यानी इसका तर्जुमा क्या है, और जिक्र करो अल्लाह की नेमत का जो तुम पर हुई। तो जब बिलाशुबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत है, तो जो इनफिरादी हो या इज्तिमाई तौर पर इस नेमत का जिक्र करना कुरान से साबित, इसी का नाम तो महफिल मीलाद है। ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह फरमाता है और जिक्र करो इस नेमत का जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाई, तुमको जो नेमत अता फरमाई। तो इस नेमत का जिक्र करना क्या है, कुरान से साबित है। महफिल मीलाद में यही तो होता है, सरकार की अज़मत बयान की जाती है, सरकार के फज़ाइल बयान किए जाते हैं, सरकार के मनाक़िब बयान किए जाते हैं। अब तीसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, यानी और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो अल्लाह के तो सब दिन हैं, सब दिन अल्लाह के हैं। तो यहाँ पर अल्लाह के दिन याद दिलाओ से मतलब क्या है, तो मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अय्यामिल्लाह से मुराद वो दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर इनामात फरमाए हैं। इसका हवाला तफसीर इब्न अब्बास, तफसीर इब्न जरीर, तफसीर खाज़र और तफसीर मदारिक, इन चारों तफासीर में यहाँ पर अय्यामुल्लाह से मुराद क्या है, वो दिन है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन दिनों में कोई खास नेमतें नाजिल फरमाई है, खास नेमतें अता फरमाई हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कोई भी मुसलमान इस हकीकत इनकार नहीं कर सकता कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत भी हैं और नेमत भी हैं। और एक आयत करीमा मशहूर मारूफ आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब एक आयत करीमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, इसका तर्जुमा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत करीमा का तर्जुमा क्या है,
क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने बदला अल्लाह की नेमत को कुफ्र करते हुए। इस आयत की तफसीर में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमत से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन फरमाते हैं? हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस आयत में नेमत से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवारों, 5 आयतें गुजर चुकी हैं। अब आओ एक और छठी आयत में आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इस आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी करे, वो उससे बेहतर है जो कि वो जमा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि मेरा जो फजल और जो रहमत तुम पर हुई उससे खुशियां मनाया करो, इसकी खुशी मनाया करो, ये उससे बेहतर है जो कुछ तुम जमा करते हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब तक की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा फजल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और उस दिन की फजीलत, अजमत, रहमत और बरकत का क्या कहना, जिस दिन ये ज़ात गिरामी दुनिया में तशरीफ लाती है और इस नेमत के अल्लाह तबारक व तआला ने कदर करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मजीद की आयतें पेश कर रहा हूँ, किसी और किताब की बात नहीं। लोग पूछते कुरान में है क्या? कुरान में है, लेकिन पढ़ो तो सही। लोग हमें कहते हैं हम कुरान नहीं पढ़ते, हम कुरान ही में से पेश कर रहे हैं कि कुरान में, मैं इंशाल्लाह आगे ये भी पेश करूंगा, कुरान में भी सबूत मैंने दे दिया, हदीस में भी है, सहाबा ने मनाया, खुलफाए राशिदीन ने मनाया। मैं इंशाल्लाह मुदल्लल तरतीबवार वीडियो बनाऊंगा, लिहाजा जो मुसलमान इन वीडियो को देख के राह रास्त पे आ गए ठीक है, नहीं फिर भी अगर हरदर्मी से इतराज करे तो हरदर्मी का कोई इलाज नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ी अजमत वाली ज़ात, सबसे बड़ी नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और इस नेमत का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। एक आखिरी आयत पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। इस आयत का तर्जुमा क्या है? हमने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें से एक रसूल भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला किस पर एहसान फरमाता है? मोमिनों पर। तो आखिरी नुक्ते की बात बयान कर रहा हूँ। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी कौन मनाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान का शुक्र कौन अदा करते हैं? जो मोमिन हैं। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है ना, तो मोमिन ही इस एहसान का शुक्र बजा लाते हैं। लिहाजा उस एहसान का शुक्र बजा लाते हुए हम सरकार का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, अजमत बयान करते हैं, फजीलत बयान करते हैं, आपकी रिफात बयान करते हैं, आपका मुकाम मर्तबा उम्मत के सामने बयान करते हैं, जिसको सुनकर लोग अजमत रसूल, मोहब्बत रसूल में डूब कर इताअत रसूल की जानिब गामजन होते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो लोग मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने का इनकार करते हैं, इसे शिर्क बिदअत हराम कहते हैं, उन्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि क्या वो ईमान वालों की फहरिस्त में आते हैं। लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत, मैं अपने सुन्नियों से भी कहता हूँ, बस अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, तो जो मीलाद मनाने वाले हैं वो मोमिन है, और जो इसका इनकार करने वाले हैं उन्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब चंद दलाइल मैंने कुरान करीम की आयतें पेश कर दी हैं मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने पर या मीलाद का जिक्र करने पर। यह कुरान मजीद की आयत मैंने पेश कर दी कि बेशक कुरान मजीद में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद है। मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इस्लामी मालूमात पहुंच रही हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से फायदा उठाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी एक का ईमान अकीदा भी अगर महफूज हो जाता है तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔